Good evening, student. So, okay, welcome. I welcome you on the Filler Form app. फिलर फॉर्म परिवार में आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा फिलर फॉर्म ऐप पूरी तरह से उन विद्यार्थियों के सपने साकार करने के लिए डेडिकेटेड हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। सो हम आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। And once again, here I am Dinesh Kamli Brahmane. I welcome you on this Pillar Farm app. And let's begin today's class. And before moving ahead, student, I would like to tell you, थोड़ा सा हम लोग आगे बात करें तो स्टूडेंट, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्मली आई वेलकम एंड लेट अस मूव अहेड। एज यू नो स्टूडेंट, हम लोग रोज कुछ न कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। और एज यू नो, वी आर इन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. You can join us. These are our platform, and you can purchase our course. If any new student, then you can purchase our course. Anyone can join us in India. ठीक है? For paper one thing I would like to tell you, in India we are providing the content, best teachings, as well as best notes and recorded class. Many more things we provide, है ना, at very low price. ठीक है? So आप कम से कम कीमत में आपको बहुत ही शानदार कोर्स आपको मिल रहा है. So here it is, first paper and first paper 6 months. Join 6 months course, only paper one. Then you have to pay only 1,499 rupees. Paper two, if you want to join, then you have to pay only 2,499 rupees. Students, paper one and paper two you can join for 6 months, as well as and paper two and paper one for 12 months you can purchase. Student, one thing I would like to tell you, one of the best course, not only in English literature, we have you can say best faculty in different subjects. तो कोई भी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकता है. Good evening. Let me clear. First of all, clear me my voice and everything is clear, then we will move ahead. आवाज clear है? So student, once again let me remind you, we will provide, I am taking classes regularly and you can go through the recorded classes also. ठीक है? We provide you previous year's question paper also. Definitely we will solve it, I promise you. हम लोग करेंगे because we June 2023, है ना? So course, and then we will once again we will revise and we will do MCQ also. We will do 100 plus mock test, है ना, mock test, and it is going to from tomorrow. I hope from tomorrow your MCQ series is going to start. ठीक है? कल से आपके MCQ शुरू हो जाएंगे. And one thing I would like to tell you, if you want to get benefit discount by purchasing this course, then you can use my 10%, or sometimes we give you more discount also. So you can use my code DISENG10, DIS, है ना, DISENG10. This code can be used by you can use and you can get benefit. ठीक है? And once again, briefly, it's formally I would like to tell you about me. I have already qualified NTA, UGC NET, as well as right now I am pursuing PhD, and I have been awarded by the government of India and Madhya Pradesh. This is my introduction, and now let's begin today's class. Read this quotation, student. Read this quotation and then we will move ahead. ठीक है? Only 2 candidates have replied. Please, what about others? My voice and audio, video, everything is clear. Yes, join fast. Only few candidates have joined the class. Once again, good evening. Please confirm me voice and everything is fine. Yes or no? Everything is fine. चलिए, आप देखिए कितना शानदार कोटेशन लिखा हुआ है यहाँ पर. यस, ओके, ठीक है. देखिए आप यहाँ पर, सी, if there is no struggle, there is no progress.
स्टूडेंट शानदार कोटेशन आप देखिए, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। दिस कोटेशन इज सेड बाय फ्रेडरिक डगलास। देखिए फ्रेडरिक डगलास, इन्होंने कहा है इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। स्टूडेंट दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज द नेचुरल ट्रूथ। जैसा कि आप जानते हैं, क्या कहा कि यदि जीवन में संघर्ष नहीं है, उन्नति आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। एंड वन थिंग आई ऑलवेज टेल, जितने बड़े सपने, जितना बड़ा लक्ष्य, उतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और उतना ज्यादा आपको धैर्य पेशेंस रखना पड़ता है, और फिर उसके बाद में उतनी ज्यादा कीमत चुकाना पड़ती है त्याग के रूप में सब कुछ, और देन यू विल गेट दी सक्सेस। क्लियर है? एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल, इफ यू आर नॉट स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। इफ वी गो थ्रू दिस स्ट्रगल इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। ये बहुत शानदार कोटेशन है स्टूडेंट, और इसके साथ ही आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेट्स मूव अहेड। So student, now let's let me begin. Let us discuss about the Earl of Surrey. Student, one thing again let me remind you, we are, हम लोग जो है यूनिट जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, ठीक है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पहली जो 4 यूनिट है ना, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन एंड प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज, वो चारों यूनिट को कंबाइन हम पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम लोग जो है ब्रिटिश लिटरेचर, उस ब्रिटिश लिटरेचर में हम ड्रामा भी पढ़ेंगे, पोएट्री पढ़ेंगे, फिक्शन पढ़ेंगे और प्रोज, ठीक है। तो जो भी है सारा हम कंबाइन कर रहे हैं, सारी 4 यूनिट साथ में चल रही है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अर्ल ऑफ सरे। एज यू नो स्टूडेंट, he was born in 1517 and died in 1547. Got it student? I hope you remember it. ठीक है। Basically let us remember, let us discuss about the Earl of Surrey. He is one of the, है ना, the real name of Earl of Surrey is Henry Howard. Sometimes this kind of such a very basic questions asked in the examination. Remember, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। आई होप यू रिमेंबर इट। ही वाज द डिसिपल ऑफ थॉमस व्याट। वी हैव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पढ़ाया है, थॉमस व्याट के ये क्या थे, डिसिपल थे, शिष्य थे, ठीक है। ये जो है थॉमस व्याट के एक तरीके से डिसिपल थे, शिष्य थे। कौन? अर्ल ऑफ सरे। और अर्ल ऑफ सरे का जो रियल नेम है वो है हेनरी हावर्ड। रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्या है, ही वाज अ ब्रेव सोल्जर। अभी हेनरी एट का शासन चल रहा है। फ्रेंच, हेनरी एट्स फ्रेंच वार, फ्रेंच एज लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द किंग ऑन सी एंड लैंड। देखिए जो हेनरी एट है उनका फ्रेंच के साथ में जो युद्ध हुआ था, उसमें हेनरी हावर्ड ने लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में, एक सोल्जर के रूप में, बहादुर सैनिक के रूप में सेवा दी थी। समुद्री और जो भूमि है वहां पर उनकी रक्षक के रूप में थे। He became Earl of Surrey. Earl of Surrey एक तरीके से इनकी उपाधि मान लीजिए, इनको एक है ना, आप कह सकते हैं। In 1524 when his grandfather died and his father became Duke of Norfolk, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल पदवी आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल पोस्ट कह सकते हैं, है ना। जब उसके पिताजी की डेथ हो गई तो ये अर्ल ऑफ सरे बन गए। In 1536 Surrey also served with his father against the pilgrimage of Grace rebellion, protesting against the resolution of the monasteries by King Henry VIII, ठीक है। तो ये कुछ न कुछ घटनाक्रम, एज आई टोल्ड यू, तो पूरा जो एज है ये ट्रांजिशन पीरियड है और बड़े बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने उसके पापा के साथ में जो पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस रिबेलियन है उसके विरोध में भी इन्होंने कहा, मतलब एक तरीके से उस समय भी उन्होंने सेवा दी थी जब ये ग्रेस रिबेलियन, रिबेलियन मतलब आंदोलन चल रहा था, पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस रिबेलियन, ठीक है। और जो क्या है, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिसोल्यूशन ऑफ मोनास्टरीज बाय किंग हेनरी VIII। हेनरी VIII के द्वारा मोनास्टरीज नामक कोई योजना थी, स्कीम थी, उसके विरोध में, तो उस समय भी अर्ल ऑफ सरे ने सेवाएं दी थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सरे वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट। रिमेंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ठीक है। सरे वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू पब्लिश इन ब्लैंक वर्स। पहले ये अंग्रेजी पोएट है जिन्होंने ब्लैंक वर्स में, ब्लैंक वर्स का मतलब होता है स्टूडेंट अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ बुक ऑफ वर्जिल्स एनीड। ये देखिए, ये वर्जिल्स के द्वारा एक बुक, बहुत महत्वपूर्ण बुक लिखी गई है, एनीट। वर्जिल्स के द्वारा एनीट बुक लिखी गई
जिसकी सेकंड और फोर्थ बुक को अर्ल ऑफ सरे ने ट्रांसलेट किया है, और वो एक पहले इस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसलिए वो ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू पब्लिश इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का मतलब है जो अंत में होता है उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, अनराइम्ड पैटर्न होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर इट। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, आगे देखिए। टुगेदर विथ व्याट, ये देखिए ये आप कह सकते हैं व्याट के साथ मिलकर के, डिसिपल है जिनके, है ना, यू रिमेंबर इट। सो ही ट्रांसलेटेड, देखिए ही ट्रांसलेटेड पेट्रार्कन सोनेट्स एंड हेंस नोन एज फादर्स ऑफ इंग्लिश सोनेट। देखिए हेंस नोन एज फादर्स ऑफ इंग्लिश सोनेट, देखिए स्टूडेंट रिमेंबर क्या कह रहे हैं, जो उनके गुरु है व्याट, थॉमस व्याट, उनके साथ मिलकर के उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट का ट्रांसलेशन भी किया, और इसीलिए इनको जो है फादर इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, ठीक है। रिमेंबर इट, यस आर नो, व्हाई इज एवरीथिंग इज फाइन, प्लीज स्टूडेंट कंफर्म मी, आवाज आ रही है सब। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, रादर व्याट इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इनटू इंग्लिश। देखिए वैसे जो है व्याट ने ही इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में सोनेट को, बट इट वाज सरे हु गेव देम द राइमिंग मीटर एंड द डिवीजन इनटू क्वाट्रेन्स that now characterizes the sonnet as Shakespearean sonnet or English sonnet or Elizabethan sonnet, ठीक है। व्याट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में। यू नो वेरी वेल अबाउट सोनेट। सोनेट क्या है, यस्टरडे आई टोल्ड यू, सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम और स्टेंजा। रिमेंबर 14 पंक्तियों की एक कविता होती है सोनेट, उसको लाने का श्रेय, इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय व्याट को जरूर है, लेकिन ये सरे ही थे, इट वाज सरे who gave them the rhyming meter, जिन्होंने राइमिंग मीटर दिया, एंड द डिवीजन इनटू क्वाट्रेन्स, और क्वाट्रेन्स में उसको डिवीजन दिया था। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, चलिए। और बाद में वही जो अर्ल ऑफ सरे ने जिसको डिवीजन दिया है ना, उसको अलग अलग भाग में बांटा, तो वही आगे चल के विलियम शेक्सपियर या शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट कहलाई, ठीक है। एंड बाद में फिर इनके कुछ वर्क ऐसे लिखे गए जो कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ है या जैसे भी हैं, तो बाद में भले ये हेनरी 8 के समय इन्होंने जनरल के रूप में भी सेवाएं दी, लेकिन ही वाज इम्प्रिजन्ड, ठीक है, इनको कैद में डाल दिया गया। एज आई टोल्ड यू, सरेस फादर वाज सेंटेंस टू डेथ, देखिए उनके पिताजी को डेथ, फांसी पे चढ़ा दिया गया है ना, यू कैन सी। सरे वाज beheaded on 13 January 1547 but his father survived। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर देखे, ये थोड़ा सा रॉन्ग फैक्ट है स्टूडेंट, है ना, ये आप ध्यान रखना। सरे वाज beheaded on 13 January 1547 but his father was, सर एक्चुअली दोनों को इम्प्रिजन में डाल दिया था, लेकिन बाद में सरे को beheaded कर दिया गया, है ना, आप कह सकते हैं, और बाद में जो है उसके पिताजी जो है सर्वाइव कर गए, उनको कैद में ही रखा गया, ठीक है। ही वाज मैरिड टू फ्रांसिस डीवेर, है ना, ये देखिए फ्रांसिस डीवेर, you can remember the name of his wife। यहां पर देखिए सरे वाज पोर्ट्रेड एज एन एक्टर, ये देखिए एक्टर भी आप कह सकते हैं, डेविड ओहारा इन द ट्यूडर्स, है ना, ये एक्टर के रूप में भी काम किए हैं, डेविड ओहारा इन द ट्यूडर्स, अ टेलीविजन सीरीज दैट रेन फ्रॉम 2007 और 2010। ये 2007-10 में ये चला था, उस समय जो है इन्होंने सरे वाज पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब है इनका चित्रण किया गया, सरे के रूप में चित्रण किया गया। सरे सोनेट वर एड्रेस्ड टू गेराल्ड डाइन, देखिए सरे की जो सोनेट्स हैं वर एड्रेस्ड टू गेराल्ड लाइन, ये देखिए किसको एड्रेस है, प्रश्न बन सकता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट रिमेंबर, सरे की जितनी भी सोनेट है, ये सोनेट जो है ये गेराल्ड लाइन को डेडिकेटेड है, एड्रेस करके लिखी गई है, ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखना है। फाउंडेड बाय सरे हैज 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट राइम, 3 क्वार्टरेन है ना, और कपलेट राइम, कपलेट राइम का मतलब
है ना। हर दो लाइन में क्या है, क्या कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि राइमिंग मिलेगी, है ना, कपलेट राइम। ठीक है, कपलेट राइम यानी दोनों में, यहाँ भी राइम, यहाँ जो रहेगा वो यहाँ भी राइम। देखिए हम आगे देखते हैं। हैविंग द राइम स्कीम ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ। देखो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से, मैं इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे क्या कह रहा है, ए ए बी, सॉरी, ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, है ना, ऐसे वो आगे बढ़ता जाएगा, ई एफ, ई एफ, और लास्ट में जी और जी। देखिए तो स्टूडेंट इसकी जो राइमिंग है, इसका जो साउंड लास्ट में निकलता है, इसके जो है ना, जैसे अंत में जो दो पंक्तियों, तो ये फर्स्ट लाइन का साउंड और थर्ड लाइन का साउंड एक जैसा रहेगा, कपलेट राइमिंग स्टूडेंट। ठीक है, यानी ये जो सेकंड लाइन है इसका साउंड और फोर्थ जो लाइन है इसका साउंड जो है, इसका साउंड जो है मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये राइमिंग स्कीम होती है स्टूडेंट। फिर यहाँ पर नया, यानी ए बी और ए बी, इनसे एक नया, चलिए ठीक है स्टूडेंट, यस और नो, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, नाउ सी, ही इज आल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन, है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट। स्टूडेंट सीधा सीधा पूछ लेते हैं, विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट लिखी है, तो यहाँ पर ये जो राइमिंग स्कीम है, ए बी, ठीक है, यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है, ए बी, सी डी, ई एफ जी जी। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, यहाँ देखिए 3 क्वार्टरेंस का मतलब एक क्वार्टरेन ये हो गया, फिर आप यहाँ पर देखिए एक ये हो गया, है ना, इस तरीके से, यानी 4 लाइन की जो है उसको क्वार्टरेन बोलते हैं। ठीक है, 2 कपलेट, राइमिंग कपलेट, यानी और अंत में 2 राइम, है ना, ये देखिए 3 क्वार्टरेन्स और अ राइमिंग कपलेट, 14 लाइन है स्टूडेंट। देखिए एक बार, तो एक क्वार्टरेन में कितनी लाइन आ रही है, 4, है ना, 4, तो यहाँ पर कितने क्वार्टरेन, 3, है ना, यानी 12 लाइन, और 2 कपलेट, कपलेट मतलब 2, कितनी लाइन हो जाएगी, 14। समझ में आया, यस और नो, गॉट इट स्टूडेंट। सी एक बार फिर से, मतलब जो 4 लाइनें रहेगी उसमें क्या रहेगा, एक बार ये पहली जो लाइन रहेगी उस और थर्ड से उसका साउंड मिलेगा, सेकंड और फोर्थ का साउंड मिलेगा, इस तरीके से। गॉट इट, समझ में आ रहा है, यस और नो। ठीक है, इसमें डिटेल में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं। चलिए, दे रॉट द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश, स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा हमारे नेक्स्ट राइटर आ गए हैं। देखिए अल्लाह सरे के बाद में थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेक्विल। ठीक है, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेक्विल, है ना, इनके बारे में देखें हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थॉमस नॉर्टन और थॉमस, देखिए दे रॉट द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, गॉर्बडॉक, आल्सो टाइटल्ड फेरेक्स एंड पोरेक्स। स्टूडेंट कई बार पूछा गया है एग्जाम में, है ना, गॉर्बोडॉक क्या है, ये पहली ट्रेजेडी है, पहला प्ले है, मतलब ऐसा जो ट्रेजेडी है गॉर्बोडॉक, इसका दूसरा नाम है फेरेक्स एंड पोरेक्स। इन 1561 थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विले के द्वारा लिखा गया है। आपको ध्यान रखना है
है ना, गोर्बोडॉक इसको कहा जाता है, फेरेक्स एंड पोरेक्स, ठीक है। इट वाज परफॉर्म्ड एट द क्रिसमस सेलिब्रेशन गिवन बाय द इनर टेम्पल इन 1561 एंड परफॉर्म्ड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये देखिए, ऑन 18 जनवरी 1562, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वीन एलिजाबेथ के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था, ये रिमेंबर करना है। पहली बार ये 1561 में इसको परफॉर्म किया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के साथ। आई होप यू रिमेंबर इट। इट इज द फर्स्ट वर्स ड्रामा, वर्स का मतलब है पोएट्री फॉर्म में आप कह सकते हैं, इन इंग्लिश टू एम्प्लॉय ब्लैंक वर्स, यानी गोर्बोडॉक या फेरेक्स एंड पोरेक्स, दोनों नाम याद रखना, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विले के द्वारा। गोर्बोडॉक या फेरेक्स एंड पोरेक्स, ये पहला फर्स्ट वर्स ड्रामा है। वर्स ड्रामा का मतलब होता है पोएटिक फॉर्म में या राइमिंग फॉर्म में, इन इंग्लिश टू एम्प्लॉय ब्लैंक वर्स, जिसमें ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। ब्लैंक वर्स का मतलब देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द एट लास्ट सेंटेंस, ठीक है। चलिए, अब जैसे जो गोर्बोडॉक है या पोरेक्स एंड फेरेक्स हैं, देखिए, पोरेक्स एंड फेरेक्स, फेरेक्स एंड पोरेक्स हैं, इसके कैरेक्टर में गोर्बोडॉक खुद है किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वाइटिना है ना, क्वीन एंड वाइफ ऑफ गोर्बोडॉक। फेरेक्स है हेड ऑफ गोर्बोडॉक, पोरेक्स है यंगर सन, डॉर्डन है अ काउंसलर असाइंड बाय द किंग टू हिज सन फेरेक्स, फिलांडरर है अ काउंसलर असाइंड बाय द किंग टू हिज सन फेरेक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये कैरेक्टर के नाम है ना। रोजर एशम नेक्स्ट हमारे राइटर हैं, रोजर एशम। क्या है रोजर एशम, देखिए यहाँ पर, सी, he was an English scholar, student C, he was an English scholar, didactic writer and famous for his prose style। रोजर एशम की हम अगर बात करें तो ये इंग्लिश स्कॉलर है, डायडेक्टिक राइटर है। डायडेक्टिक राइटर मीन्स आप कह सकते हैं नेटिव राइटर भी आप कह सकते हैं, ये लोकल आप कह सकते हैं जो डायलेक्ट में लिखते हैं। एंड फेमस फॉर हिज प्रोज स्टाइल, बहुत ही इनकी एक यूनिक प्रोज स्टाइल रही है, तो उसको ये प्रस्तुत करते थे। ही एक्टेड एज प्रिंसेस एलिजाबेथ ट्यूटर, यहां तो देखिए आप, he acted as Princess Elizabeth's tutor in Greek and Latin between 1548 to 1550। उन्होंने जो है, जो एलिजाबेथ है उनके ट्यूटर के रूप में भी इन्होंने काम किया था रोजर एशम ने, रिमेंबर इट, ठीक है। ही वाज द सन ऑफ जॉन एशम, ध्यान रखना, जॉन एशम के बेटे थे ये। इन 1530 एशम हैड एन unspecified quarrel with the court which he ambiguously described as a storm of recent violence and injury, है ना, injury quarrel with the court, जैसे मतलब एक तरीके से उनका झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, which he ambiguously described as a storm of recent violence and injury। स्टार्म तूफान है, आंधी किसका, रिसेंट वायलेंस, अभी जो हिंसा हो रही है, तात्कालिक हिंसा, यानी कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ऐसे आ रहे होंगे जो असमानता की बात कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर इन्होंने विरोध में, मतलब कोर्ट के विरोध में एक सब करा। इनके मेजर वर्क्स में टॉक्सोफाइलस है स्टूडेंट, है ना, जो कि दिस फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ एशम, ये पहला टॉक्सोफाइलस, ये पहला जो है वर्क है रोजर का, और इसका मतलब होता है लवर ऑफ द बो। टॉक्सोफाइलस का मतलब लवर ऑफ द बो इन 1545 एंड इट वाज डेडिकेटेड टू हेनरी 8, रिमेंबर इट, किसको डेडिकेट करके लिखा गया है ना, ये हेनरी 8 को। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, अर्लियर मोस्ट ऑफ द अर्लियर राइटर्स they used to, you can say, write dedicating their you can say royal family, especially king, राजा को जो बात अच्छी लगती थी वो लिखते थे, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट बुक ऑन आर्करी इन इंग्लिश, है ना, तो ये आर्करी के ऊपर पहली बुक है इंग्लिश में। द वर्क इज अ प्लेटोनिक डायलॉग बिटवीन टॉक्सोफिलस एंड फिलोलोगस, है ना, ये दोनों दो कैरेक्टर हैं, इनके बीच में डायलॉग है आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में आप डायलॉग के रूप में कह सकते हैं। Then the schoolmaster in 1563, Ascham began the work the schoolmaster, which was published posthumously in 1570। एक्चुअली में इनकी डेथ हुई है 1568 में, देखिए आप, इनकी डेथ हुई है 1568 में,
और इन्होंने जो है ये वर्क पब्लिश किया है 1570 में, इनके डेथ के बाद में। द बुक कंसंट्रेट ऑन टीचिंग ऑफ लैटिन, है ना, जो लैटिन में जो टीचिंग है, ज्ञान है, उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करता है। एंड इट वाज नॉट इंटेंडेड फॉर स्कूल्स बट स्पेशली इंटेंडेड फॉर प्राइवेट ब्रिंगिंग अप ऑफ यूथ इन जेंटलमैन एंड नोबल हाउसेस। ठीक है, तो एक तरीके से टोट केवल स्कूल को टारगेट करके नहीं लिखा जा रहा था। इट वाज नॉट इंटेंडेड फॉर स्कूल्स बट स्पेशली इंटेंडेड फॉर प्राइवेट ब्रिंगिंग अप ऑफ यूथ इन जेंटलमैन एंड नोबल हाउसेस। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल का एक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, जिससे कि जेंटलमैन और नोबल हाउसेस, यानी जो बड़े बड़े नोबल हाउस है, जो समाज में उच्च वर्ग है, तो वहां पर आप प्राइवेट लर्निंग को भी बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है द लार्जर कंसर्न ऑफ द बुक इज साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द एजुकेशन ऑफ द होल पर्सन एंड द आइडियल मोरल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी एंड एजुकेशन। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था। स्कूल मास्टर एजुकेशन के ऊपर है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग की, ज्ञान की क्या साइकोलॉजी है उसके ऊपर है, एंड द होल पर्सन एंड द आइडियल मोरल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी एंड एजुकेशन। ठीक है, फ्रांसिस ब्यूमाउंट हमारा राइटर है स्टूडेंट, फ्रांसिस ब्यूमाउंट। यहाँ पर देखिए ब्यूमाउंट एंड फ्लेचर, है ना, ये देखिए दोनों साथ में ही नाम पुकारे जाते हैं इनके, फ्रांसिस ब्यूमाउंट एंड कोलैबोरेशन, यानी ब्यूमाउंट और फ्लेचर दोनों ने हमेशा साथ में लिखा है, इसलिए कई बार इनको एक ही मान लिया जाता है ना। कई बार ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही है, लेकिन है नहीं, एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, चलिए। फिर ब्यूमाउंट वाज बोर्न इन 1584 व्हाइल फ्लेचर इन 1579, रिमेंबर इट। बोथ द राइटर्स कोलैबोरेटेड, दोनों ने, ब्यूमाउंट एंड फ्लेचर दोनों ने क्या है, दोनों ने कोलैबोरेट करके क्या है, विथ शेक्सपियर, शेक्सपियर के साथ में। देखिए ब्यूमाउंट एंड फ्लेचर दोनों कोलैबोरेट करके किसके साथ में, शेक्सपियर के साथ में। क्या लिखा था इन्होंने मिलके सबने, विलियम शेक्सपियर, ब्यूमाउंट, फ्लेचर ने, किंग हेनरी एट, ये देखिए, है ना, किंग हेनरी एट एंड द टू नोबल किंग्समैन, एंड द टू नोबल किंग्समैन, ये लिखा था। शेक्सपियर आल्सो कोलैबोरेटेड विद फ्लेचर, बाद में फ्लेचर के साथ मिलकर शेक्सपियर ने भी क्या लिखा है, कार्डेनियो, कार्डेनियो, कार्डेनियो इज रिगार्डेड एज अ शेक्सपियर वर्क आल्सो। ठीक है, कई बार कार्डेनियो को जो है शेक्सपियर का ही वर्क माना जाता है, लेकिन फ्लेचर के साथ में कोलैबोरेट करके लिखा है। कुछ मास्टर वर्क यहाँ पर हम ब्यूमाउंट और फ्लेचर की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, फैथफुल शेफर्डेस। ठीक है, फैथफुल शेफर्डेस, शेफर्ड, शेफर्डेस, ये याद रखना है। एंड द स्कॉर्नफुल लेडी, एंड द स्कॉर्नफुल लेडी है एन एक्सीलेंट डोमेस्टिक कॉमेडी है, ये भी, है ना, डोमेस्टिक कॉमेडी है। द नाइट ऑफ द बर्निंग पैसल, द नाइट ऑफ द बर्निंग पैसल, ये भी ब्यूमाउंट एंड फ्लेचर के द्वारा लिखा गया है। वन ऑफ द अम्यूजिंग एंड निम्बल पैराडाइज ऑफ द चिवलरस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और बस इसमें ये वर्ग इतना ज्यादातर जो है आपको ध्यान रखना है, द नाइट ऑफ द बर्निंग पैसल। उसके बाद में स्टूडेंट आज का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर इट। वॉइस इज क्लियर, वन थिंग, है ना, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, तो आज हम लोग जो है बहुत शानदार एक बड़े राइटर है बेन जॉनसन, उनकी अब हम चर्चा करेंगे। बेन जॉनसन की अगर हम बात करें तो ही वाज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1637। ठीक है, बेन जॉनसन वाज एन इंग्लिश प्लेराइट एंड पोएट। स्टूडेंट, बेन जॉनसन वाज एन इंग्लिश प्लेराइट एंड पोएट whose artistry exerted a lasting impact upon English poetry and stage comedy। ठीक है, प्ले राइट हैं जिनकी कविताओं ने, जिनके वर्क ने क्या है, बहुत बड़ा प्रभाव डाला किसके ऊपर, इंग्लिश पोएट्री के ऊपर
और स्टेज कॉमेडी। स्टूडेंट स्टेज कॉमेडी ये प्लेइस्ट है, प्ले राइट का काम ही होता है ड्रामा या प्ले। they started writing drama or plays, and the drama and plays it is performed है ना on the stage, स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है? बेन जॉनसन बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ही वर्कड एज अ ब्रिक लेयर लाइक हिज स्टेप फादर। ठीक है ना, ब्रिक लेयर के रूप में भी काम किया है बेन जॉनसन ने। इन 1616 जॉनसन रिसीव्ड अ ईयरली पेंशन ऑफ 100 मार्क्स। देखिए है ना, पेंशन ऑफ 100 मार्क्स अबाउट यू कैन से 60 है ना पौंड आप कह सकते हैं, लीडिंग सम टू आइडेंटिफाई हिम एज इंग्लैंड्स फर्स्ट लॉरिएट। देखिए याद रखना है स्टूडेंट, पोएट लॉरिएट बनना बड़ी उपलब्धि है। यहाँ देखिए इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरिएट, रिमेंबर इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरिएट। पोएट लॉरिएट का मतलब ये है कि जो जितने भी राइटर है, पोएट है ना, तो उन सब का क्या है एक तरीके से अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चीफ, चेयरमैन, सब में सर्वोत्तम। और ऐसा नहीं किसी को भी बना दिया, जो उसके एलिजिबल होता है, जो उसके काबिल होता है, उसको बनाया जाता है। गॉट इट स्टूडेंट? यस और नो? गॉट इट? ठीक है, तो पहले पोएट लॉरिएट, ही सर्वड एज अ सोल्जर इन फ्लैंडर्स ला कंट्रीज। देखिए है ना, इन्होंने यहाँ पर जो है ही सर्वड एज अ सोल्जर इन फ्लैंडर्स ला कंट्रीज, फ्लैंडर्स ला कंट्रीज में भी इन्होंने सेवाएं दी। बिकेम एन एक्टर प्लेराइट विद द ला कंट्रीज। ये देखिए इन 1597 में बिकेम एन एक्टर एंड प्लेराइट विद ला कंट्रीज। ठीक है, तो ये प्लेराइट भी बन गए थे वहां पर। एज एन एक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, द एंड इज हैप्पी, यहाँ पर फॉर द लवर्स हु आर डिस्कवर्ड टू बी नो ब्रदर एंड सिस्टर एंड आर हैप्पीली मैरिड एट द एंड। ये थोड़ा सा इसका एक कंक्लूजन है स्टूडेंट, आप कह सकते हैं। ठीक है, जहां पर जो हैप्पी एंडिंग होती है, आपने देखा होगा कोई भी प्ले होते हैं, मूवी होती है, तो कहीं पर ट्रेजेडी होती है ना, और कहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हैप्पी एंडिंग में कि जो है दुल्हा दुल्हन मिल गए या दोनों हीरो हीरोइन मिल गए, है ना, दे गॉट मैरिज एटसेट्रा। तो यहाँ पर भी क्या है, एट द एंड इज हैप्पी फॉर द लवर्स, है ना, लवर्स के लिए क्या हैप्पी एंड है, हु आर डिस्कवर्ड टू बी नो ब्रदर एंड सिस्टर एंड आर हैप्पीली मैरिड। फाइनली दे फाउंड दैट दे आर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर, है ना, एंड दे गॉट मैरिड। ठीक है, इस तरीके से इसमें कुछ है। ही वाज इम्प्रिजन फॉर राइटिंग द सैटिरिकल प्ले द, है ना, इसले ऑफ डॉक्स। ये एक सैटिरिकल प्ले लिखा इन्होंने और इसके कारण इनको भी क्या है इम्प्रिजन कर दिया गया, कैद में डाल दिया गया। आई होप यू रिमेंबर इट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पोएट्स है ना, दे हैव बीन इम्प्रिजन। एपिग्राम एंड द फॉरेस्ट आर द पोएटिक कलेक्शन। यू रिमेंबर बेन जॉनसन के वर्क है एपिग्राम एंड द फॉरेस्ट। एपिग्राम एंड द फॉरेस्ट आर द पोएटिक कलेक्शंस बाय बेन। ही क्वारल्ड बिटरली विद इनिगो, क्वारल्ड विद मास्टन एंड डेकर इन वॉर ऑफ द थिएटर्स। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर ये वॉर ऑफ द थिएटर्स है। यहाँ पर क्या है, उनके कुछ साथ में जो कलाकार होंगे, इनिगो जॉन्स स्टेज डिजाइनर है, इनके साथ में इनका फाइट हुई है, झगड़ा हुआ, ये लिखा हुआ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये आपको ध्यान रखना है आज की क्लास में, यही सबसे महत्वपूर्ण है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर मेड हिम अ सेलिब्रिटी। एक काम, एक वर्क, ठीक है, एक वर्क जो है मेड हिम अ सेलिब्रिटी, उनको क्या है सेलिब्रिटी बनाया। ही वाज अ लिटरेरी डिटेक्ट, है ना, ही वाज अ लिटरेरी डिक्टेटर एट द मरमेड टावन, है ना। ये देखिए मरमेड टावन में वो क्या लिटरेरी डिटेक्टर थे बेन जॉनसन। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें ही वाज ब्यूरिड इन, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, यहाँ पर आप, ही वाज ब्यूरिड इन वेस्टमिंस्टर एबे विद एपिटफ ओ रेयर बेन जॉनसन। ओ रेयर बेन जॉनसन, ये एपिटफ का मतलब है इनका जो समाधि बनी हुई है कहां पर, वेस्ट मिस्टर एबे में, वहां पर ये लिखा हुआ है उनकी समाधि पर। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हु वाज फर्स्टली यू कैन से ब्यूरिड देयर। सबसे पहले किसको ब्यूरिड किया गया था, आप बताइए। वेस्टमिंस्टर एबे क्या है और किसको ब्यूरिड किया गया था, मैंने आपसे कहा है, बताइए, टेल मी। हु वाज द फर्स्ट ब्यूरिड एट वेस्टमिंस्टर,
वेस्ट मिनिस्टर जो प्लेस है, व्हाट इज दिस, एंड पहली बार किसको ब्यूरिड किया गया था? टेल मी स्टूडेंट, यस टेल मी, डू यू रिमेंबर द नेम? डू यू रिमेंबर द नेम हु वाज ब्यूरिड फर्स्ट? No, let me remind you. Let me remind you, student. It was Geoffrey Chaucer. Remember, it was Geoffrey Chaucer. वेस्टमिंस्टर एबे, जो आजकल अब पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाने लगा है, इंग्लैंड में वो स्थान है जहां पर रॉयल फैमिली को दफनाया जाता था। रॉयल फैमिली के किसी भी व्यक्ति को वहां पर दफनाया जाता था, लेकिन बाद में वेस्टमिंस्टर एबे में जॉफ्री चौसर पहले व्यक्ति थे जिनको वहां दफनाया गया, और बाद में जो महत्वपूर्ण जैसे बेन जॉनसन है और भी कुछ पोएट लारियट है, तो उनको वहां पर दफनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। ठीक है, तो वेस्टमिंस्टर एबे आपको ध्यान रखना है। अर्नोल्ड also wrote a book, The English Poets Ben Jonson to Dryden। देखिए, अर्नोल्ड आगे एक और राइटर आएंगे, उन्होंने भी इनके ऊपर बुक लिखी है ना, द इंग्लिश पोएट्स बेन जॉनसन टू ड्राइडन, ये क्रिटिक्स है ना, ये ध्यान रखना है। देन ही एम्प्लॉयड द ह्यूमनिस्ट आइडियल ऑफ क्लोज इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो बेन जॉनसन है, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक आइडियल ऑफ क्लोज इमिटेशन ऑफ द क्लासिक्स। क्लासिक्स, क्लोज इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स का मतलब है पुरातन समय में जो मेल जोल भाईचारे की भावना थी, उसको इन्होंने अपनाया, और मानवतावादी आइडियल्स को, सोच को इन्होंने अपनाया है। द थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएट्री अंडरवुड, ये देखिए इनका एक थर्ड कलेक्शन है, नाम पोएट्री अंडरवुड, अपीयर्ड पोस्ट माउथली, यानी इनकी डेथ के बाद। कब डेथ हो रही स्टूडेंट? देखिए 37 में, एंड in the 1640 editions of his workers। देखिए, the third collection of poetry Underwood appeared posthumously and in the 1640 edition of his workers। ठीक है, यहाँ पर जो है 1640 में उनका जो एडिशन है वर्कर्स, उसमें ये पब्लिश हुआ है ना, द थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएट्री। इसके बाद में देन वी डिस्कस जॉनसन इन हिज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। देखिए, एक तो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और यहाँ पर क्या है, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। 1599 Johnson in his Every Man Out of His Humor 1599 described two kinds of humors। उन्होंने दो प्रकार के ह्यूमर्स की बात करी, क्या? ट्रू ह्यूमर और एडॉप्टेड ह्यूमर। बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो यहाँ पर बेन जॉनसन ने दो प्रकार के ह्यूमर की बात करी। एक तो ट्रू ह्यूमर है, मान लो एक व्यक्ति सच्चा है ना, किसी को हंसी आ रही है, तो वो ही इज ट्रूली ही वाज यू कैन से लाफिंग, एंड कुछ है जो है एडॉप्टेड ह्यूमर है, बनावटी आप कह सकते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पर बात करें पीएस इलियट ऑन बेन जॉनसन। पीएस इलियट बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, और वो जो है बेन जॉनसन के ऊपर बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। क्या कहा उन्होंने? द रेपुटेशन ऑफ जॉनसन हैज बीन ऑफ द मोस्ट डेडली काइंड दैट कैन बी कंपेल्ड अपॉन द मेमोरी ऑफ अ ग्रेट पोएट। तो ये लाइन कही गई है टीएस इलियट के द्वारा बेन जॉनसन के बारे में। क्या कहा है कि द रेपुटेशन ऑफ जॉनसन हैज बीन, reputation of Johnson has been of the most deadly kind that can be compelled upon the memory of a great poet। कुल मिला के जो जॉनसन की रेपुटेशन है, वो एक कवि के रूप में वो क्या है, उनको एक महान बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू रिमेंबर इट। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन यहां से ये वाला पूछा हुआ है। क्या है ये? इट इज अ टेक्निक, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, रिमेंबर इट। इट इज अ टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ये क्या है? कैरेक्टराइजेशन की एक टेक्निक है जिसको बेन जॉनसन ने यूज किया है। इन दिस टेक्निक एन इंडिविजुअल इज मार्क्ड बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स distortions are eccentric and eccentricity based on one of the four humors। देखिए, इस टेक्निक में क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर आप कैरेक्टरिस्टिक्स बांट देते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है कॉमेडी है तो वो कॉमेडी करेगा, एक व्यक्ति जो है वो विलेन का रोल करेगा तो विलेन ही करेगा, एक व्यक्ति का काम है ना। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर आप मूवी भी देखते हैं, व्हेन यू वॉच मूवी, टेलीविजन, फिल्म, यू सी देयर, यू फाइंड सच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर चार प्रकार के कौन कौन से ह्यूमन है,
तो देखिए यहाँ पर ब्लड आर सेंग्यूइन, तो ये सोशाइब ब्लड आर सेंग्यूइन, ये जो कैरेक्टर होता है ह्यूमन सोशेबल आर प्लेजर सीकिंग, है ना। अगला है फ्लेम, रिलैक्स्ड एंड क्वाइट, रिलैक्स एंड क्वाइट। फिर है कॉलर आर येलो बाइल, एम्बिशियस एंड लीडर लाइक। और फोर है मेलंकली आर ब्लैंक वाइट, इंट्रोवर्टेड एंड थॉटफुल। मेलंकली आर ब्लैंक वाइट, इंट्रोवर्टेड एंड थॉटफुल, ठीक है ना। तो ये चार है, आपको याद रखना है। ब्लड आर सेंग्यूइन, फ्लेम, कॉलर आर येलो बाइल और मेलंकली आर ब्लैंक वाइट। स्टूडेंट, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो टेक्निक है उसके चार पार्ट है। बेन जॉनसन ने इसका यूज किया था। बेन जॉनसन के महत्वपूर्ण वर्क की हम बात करें तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है 1598 में, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599 में, सिंथिया रिवेल्स 1600 में, द पोएट आस्टर 1601 में, अ फुल ऑफ वाइवेसिटी एंड फन, वॉल्पेनो द फॉक्स, इपिसिन आर द साइलेंट वुमेन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, ये दोनों वॉल्पेनो एंड इपिसिन आर द साइलेंट वुमेन, ये दोनों ही बेन जॉनसन के द्वारा रखा गया है। द अल्केमिस्ट, स्टूडेंट आजकल वर्तमान में एक और बुक चल रही है द अल्केमिस्ट, है ना, 1610 में है। अभी वर्तमान में मॉडर्न जो चल रही है, बहुत प्यारी बुक है स्टूडेंट द अल्केमिस्ट, इसको आपको पढ़ना चाहिए। द अल्केमिस्ट आजकल नई जो मॉडर्न अभी एरा में एक बुक मार्केट में चल रही है, द अल्केमिस्ट। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन को लेके लिखी गई स्टूडेंट, बहुत शानदार लर्निंग है ना। फिर है बार्थलो मे फेयर, लेस पावरफुल। तो ये बेन जॉनसन के वर्क है स्टूडेंट, आई होप यू रिमेम्बर इट, बेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए हैं। और अगला इनका जो वर्क है स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये प्ले है, ड्रामा है, इट वाज रिटन इन 1598, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है। आप लोग इसकी स्टोरी सुन सकते हैं, जा सकते हैं। इट इज हिज फर्स्ट प्ले, रिमेंबर ये बेन जॉनसन का क्या है, ये फर्स्ट प्ले है, ध्यान रखना। प्लेड बाय लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन एट कर्टेन थिएटर। स्टूडेंट थिएटर इजाद हुए हैं इंग्लैंड में, वहां पर पहली बार जो है लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, है ना, उनके द्वारा ये कर्टेन थिएटर है वहां प्रस्तुत किया गया था। देखिए थिएटर क्या मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय थिएटर। उस समय लोग परफॉर्म करते थे स्टेज पर, उस समय सिनेमा नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। आज जो हम मोबाइल में, टीवी में या थिएटर में जाके मल्टीप्लेक्स में जाके मूवी देखते हैं, ऐसा नहीं है। उस दौर में इंटरटेनमेंट के लिए ये जो प्ले लिखे जाते हैं, उस प्ले को क्या है, डायरेक्टली इट वाज परफॉर्म्ड, स्टिल इट इज परफॉर्म्ड इन द big cities. In Bombay you can see, in Indore you can see, in Jaipur you can see, in Lucknow you can see. There are you can see there are many you can say modern theater are available where you can say artist perform on the stage, जहां पर क्या है आर्टिस्ट जो है अपने स्टेज पर परफॉर्म करते हैं अभी भी। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, देखिए तो अब इसमें क्या है, ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, प्ले या ड्रामा या नाटक, ये प्रोलॉग से शुरू होता है स्टूडेंट। प्रोलॉग का मतलब इंट्रोडक्शन पहले आता है ना। ये क्या है, इसमें प्रोलॉग पहले है। द प्रोलॉग ऑफ द प्ले अटैक्स थीम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कंटेम्पररी ड्रामा, है ना। द प्रोलॉग ऑफ द प्ले अटैक्स थीम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कंटेम्पररी ड्रामा एंड एक्सप्लेन्स हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमर। इसमें क्या है कि भाई मतलब इसमें कंटेम्पररी ड्रामा एंड एक्सप्लेन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर यानी ह्यूमर, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमर। ह्यूमर मतलब हंसना, मुस्कुराहट। तो उसकी थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि रियल हंसी क्या है। यहाँ पर आपको बता दें स्टूडेंट, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया ये प्ले इतना महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, है ना, इतना महत्वपूर्ण है कि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेइस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ही एक्टेड इन इट। आप देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर ने यहाँ खुद एक्ट किया था। ही प्लेड द रोल ऑफ द कैरेक्टर एडवर्ड नोवेल। ये देखिए, है ना, ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, एडवर्ड नोवेल किस में आता है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, हु हैज रिटन, बेन जॉनसन। एडवर्ड नोवेल का कैरेक्टर किसने निभाया, किसने एक्ट किया, विलियम शेक्सपियर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको हर एंगल से याद रखना है, ठीक है। द कैरेक्टर बोबेडिल
ये देखिए एक और कैरेक्टर इसमें, बॉबेडिल इज वन ऑफ जॉनसन ग्रेटेस्ट क्रिएशंस, बॉस्टफुल कावर्डली सोल्जर। देखिए है ना, ये भी इनका एक बहुत फेमस है, बॉबेडिल भी। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं कि ये कैरेक्टर किस किस प्ले में है, किसके प्ले में है, बेन जॉनसन के प्ले में है, किस प्ले में है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में है, ऐसा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। द कैरेक्टर बॉबेडिल इज वन ऑफ जॉनसन ग्रेटेस्ट क्रिएशंस, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक यहाँ देखिए, चार्ल्स डिकेंस एक्टेड द रोल ऑफ कैप्टन बॉबेडिल। ये देखिए चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आपको मालूम होगा, ग्रेट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, है ना, वो हम आगे आएगा कहीं ना कहीं। वो भी इन्होंने रोल ऑफ कैप्टन बॉबेडिल का रोल किया है इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इन 1845। रिमेंबर, इतना महत्वपूर्ण प्ले है जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना काफी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन डाउनलोड नोट्स पीडीएफ फ्रॉम आवर ऐप एंड www.fillerform.info, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। वंस अगेन दिस इज आवर कोर्सेज, यू कैन परचेज। और फिर से जानिए, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। फिलर फॉर्म खर्च कर रहा है आपके लिए, आपके लिए सारी क्लासेस शानदार लेकर आ रहा है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।